Good morning everyone. Welcome to the online classes of SGOI. Students, in my previous class, I started the chapter polynomial and their factors. Okay? Today, I will continue this chapter with division. Okay? In my previous class, I discussed how to add two polynomials, how to subtract and multiplication. Now, for division, let fx and qx and gx are two polynomials such that gx does not equal to 0. Okay, sorry, qx does not equal to 0. Okay, now we can find here the gx. Now we can find qx and rx by division. Okay, qx and rx by division. As we know that, divided is equals to divisor into quotient plus remainder. Okay, now here the dividend is fx. Okay, divisor is gx and qx is quotient and remainder is rx. Okay, means gx this is fx, here qx, and here we get remainder. Remainder is rx. Okay. Then students, here rx, if rx is 0, rx 0 means remainder is 0. If we get remainder 0, it means gx is the factor of fx. Okay. When we divide, for example, when we divide some number, this is 3, 12. Okay. 3 4s are 12. Then when we get remainder as a 0, it means 3 is the factor of 12. Same here, if we get remainder as 0, it means gx is the factor of polynomial fx. Okay, and okay students, now here if rx is 0, then we can say that gx is a factor of fx. It is clear? Now, if degree of rx is less than degree of gx, okay, here we get qx as quotient and rx as remainder. Okay, now let's see one example. Students, when we divide some number by the another number, we get remainder always 0 or less than the divisor. Okay, for example, here we divide 3 16. Okay, here 3 5s are 15. We get remainder 0. If the number is 17, then we get remainder 2. But if the number is 18, then we get remainder 0. It means we get remainder always less than the divisor. Okay, then
if remainder, degree of remainder is less than the degree of gx, it means we get remainder and quotient. Here are only two cases. First is remainder 0. When remainder is 0, it means gx is a factor of polynomial fx, and the second case is we get remainder, degree of remainder means rx is less than the degree of gx. Clear? Now let's see some example. Okay students, let's see the example. When a polynomial x square plus 4x plus 5 is divided by x plus 3, which is another polynomial, okay, then find the remainder. Let's see the solution. X plus 3, x square plus 4x according to the question, the equation become x square plus 4x plus 5 divided by x plus 3. Okay, now we can write it x plus 3 divide x square plus 4x plus 5. Okay, now the first step is, जब हम इसको डिवाइड करेंगे उसमें पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहले अरेंज दिस पॉलिनोमियल इन द डिग्री ऑफ वेरिएबल इन असेंडिंग ऑर्डर. ओके, हियर चेक इट, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, हियर द पावर ऑफ x 1 and plus constant term means 5. Okay, now the next step is इन x, हम x में किसका मल्टीप्लाई करें कि हमें x स्क्वायर मिले? देन इफ वी मल्टीप्लाई x बाय x वी गेट x स्क्वायर. ओके, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन फाइंड इट इन द बाय दिस मेथड. यू कैन डिवाइड x स्क्वायर बाय x. ओके, व्हेन वी डिवाइड इट वी गेट x. ओके, नाउ मीन्स अगर हम इस x में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? x स्क्वायर. देन द क्वेश्चन इज x. नाउ मल्टीप्लाई इट. x इंटू x इज x स्क्वायर प्लस x इंटू 3x. x इंटू 3x इज 3x. ओके, आपको पता है कि हमेशा लाइक टर्म्स ही ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं, एंड जब हम डिवाइड करते हैं तो हम इसमें फॉर एग्जाम्पल 3 5 15. यहाँ पे हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्शन करते हैं. तो द नेक्स्ट स्टेप इज सब्ट्रैक्शन. ओके, नाउ सब्ट्रैक्ट इट. आप सभी को पता है व्हेन वी सब्ट्रैक्ट इट द साइन विल बी चेंज, मीन्स माइनस माइनस. ओके, अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम साइन क्या लेते हैं? प्लस लेते हैं. नाउ दिस इज प्लस एक्स स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर, कैंसिल आउट इट. हियर द प्लस 4x एंड माइनस, अब इस x को भूल जाइए, आपको लेना है माइनस 3x. ओके, मीन्स 4x माइनस 3x. 4x माइनस 3x इज x. ओके, एंड द रिमेनिंग टर्म इज 5. देन वी कैन राइट इट x प्लस 5. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट नंबर इज, अब हम x में क्या डिवाइड करेंगे, क्या मल्टीप्लाई करेंगे, हमें x मिले. देन द नंबर इज 1. देन द क्वेश्चन इज प्लस 1. नाउ व्हेन वी मल्टीप्लाई 1 इंटू x वी गेट x. नाउ 3 इंटू 1 इज 3. अगेन सब्ट्रैक्ट इट. माइनस माइनस प्लस x माइनस x 0. Plus 5 minus 3. Plus 5 minus 3 is 2. Then the remainder is 2. Clear? यहाँ पे आपसे पूछा गया है फाइंड द रिमाइंडर. तो रिमाइंडर कितना होगा आपका? 6 का कितना आया है? 2. क्लियर? यहाँ पे जब आप इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज आपका जो फर्स्ट टर्म होगा वो हमेशा कैंसिल आउट होगा. क्लियर? नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल. Okay students, the next example is
When a polynomial x cube plus 1 is divided by x plus 1, then find the remainder. Okay? Let's see the solution. X plus 1, x cube plus 1 upon x plus 1. Firstly, we write it in the form of this. Now, x plus 1, x cube plus 1. Okay? The first step is check the order. Here the order is right, correct. Now, in x, firstly divide x cube by x, we get x square. Means अगर हम x में x square का multiply करेंगे, then we get x cube. Okay? Then the quotient is x square. X square. Now multiply it. X square into x is x cube and x स्क्वायर प्लस 1 दोनों में जितने भी यहाँ पे टर्म्स होंगे आपको सब में मल्टीप्लाई करना है. देन x स्क्वायर इंटू 1 इज x स्क्वायर. क्लियर? नाउ सब्ट्रैक्ट इट. व्हेन वी सब्ट्रैक्ट, एज वी नो दैट द साइन विल बी चेंज, मींस माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर से साइन नीचे चेंज हो जाएंगे. प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब इज 0 एंड हियर 1 माइनस एक्स स्क्वायर. स्टूडेंट आपको पता है कि हमेशा लाइक टर्म्स से ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं. देन इन दिस केस वी राइट माइनस एक्स स्क्वायर. जो भी आपका रिमेनिंग टर्म होगा आप उसको लिख लेंगे, प्लस यहाँ पे जो रिमेनिंग टर्म है प्लस 1 उसको लिख लेंगे. क्लियर? नाउ फॉलो द सेम स्टेप. एक्स में हम किसका मल्टीप्लाई करें कि हमें माइनस एक्स स्क्वायर मिले, नॉट प्लस एक्स स्क्वायर. आपको साइन भी लेना है. Then minus x square divided by x, we get minus x. Means minus x का multiply करने पे हमें क्या मिलेगा? Minus x square. Then minus x. Now multiply it. Minus x plus x is minus x square, and here minus x. Minus x into 1 is minus x. Now subtract it. Here plus minus become plus and minus become plus. Minus x square plus x square cancel. Here plus x plus 1. Then plus x plus 1. Clear? Now if we multiply x plus 1 by 1, we get x plus 1. Okay? Then the quotient is plus 1. Now here x plus 1, then we subtract it, sign will be changed and the remainder is 0. रिमाइंडर कितना मिला है? 0. स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको रिमाइंडर 0 मिलता है इस कंडीशन में जो आपका जीएस फंक्शन होता है मीन्स डिवीजर, वो फैक्टर होता है किसका? डिविडेंड का. मीन्स वी कैन से दैट हियर x we get Rx. Rx means remainder is equals to 0. When we get remainder 0, then x plus 1. Gx. Gx is equals to x plus 1. X plus 1 means this divisor. Okay. X plus 1 is the factor of x cube plus 1. क्लियर? मीन्स जब भी आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा, ये फंक्शन जो आपका होगा डिवीजन, वो डिवीजन का क्या होगा? फैक्टर होगा. क्लियर? नाउ स्टूडेंट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड वन फैक्टर ऑफ x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12. ओके, ये आपको पॉलिनोमियल दिया गया, इसका फैक्टर निकालना है. मीन्स यहाँ पे आपको किससे डिवाइड करना है ये चीज नहीं दी गई, ये आपको फाइंड करनी है. नाउ सी द सॉल्यूशन. इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन फर्स्टली वी लेट ओके px is equals to x, it is fx. Okay, fx is equals to x cube minus 3x square plus 4x minus 12. Okay, now find the value of factor.
तो जो भी इसका फैक्टर होगा, स्टूडेंट जब हम यहाँ पे अभी सॉल्व कर रहे थे, फॉर एग्जाम्पल ये आपका fx था, यहाँ पे x माइनस 1 था, ओके, और आपको रिमाइंडर क्या मिला था, 0। अगर रिमाइंडर 0 है तो मैंने क्या बोला था, x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ fx। इट मीन्स कि अगर आपका fx इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 1 प्लस 5x माइनस 3 एंड सो ऑन, ओके, इट इज ओनली वन एग्जाम्पल। ऐसे केस में क्या होगा, अगर x माइनस 1 फैक्टर है किसका, fx का, देन इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ x minus 1 is equals to 0, then we get x is equals to 1। और अगर हम इस 1 की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में रखेंगे, मीन्स f1 is equals to, यहाँ पे अगर आप x की वैल्यू 1 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0, ओके। अगर 0 नहीं मिल रहा है, इट मीन्स कि ये फैक्टर नहीं है, ऐसा ऑलवेज मिलेगा, बस आपका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। क्लियर? Then here we put x, value of x, putting x is equals to 1, minus 1, 2, minus 2, 3, minus 3 and so on। हम ये वैल्यू 1 by 1 x के प्लेस में रख के देखेंगे, जब हमको 0 मिलेगा उस केस में हम बोलेंगे कि ये इसका फैक्टर है। Now check it. F1. Firstly we put x is equals to 1. X is equals to 1. Okay. Then 1 cube minus 3x square. Sorry, 1. It is 1. Okay. Not x. Plus 4 1 minus 12. Okay. Then 1 minus 3 plus 4 minus 12. We get 5 minus 15, which is minus 10. It is not 0. Okay. It means x minus 1. X minus 1. Why x minus 1? When we change the side of 1, it becomes x minus 1. It means x minus 1 is not a factor of polynomial fx. ये इसका फैक्टर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें यहाँ पे 0 नहीं मिला, x की वैल्यू 1 रखने पे हमें 0 नहीं मिला है। Now check again, put x is equals to minus 1, okay, then f minus 1 cube, here 3 minus 1 square plus 4 minus 1 minus 12, we get, आपको पता है किसी भी माइनस का क्यूब करेंगे अगर पावर में ऑड है, we get माइनस साइन, मीन्स माइनस 1, here 3 minus 1 square we get plus 1, 3 plus, sorry, minus 4, 12, okay. Now when we calculate it, we never get 0, okay. 12 minus 6 both are same sign, हम इन्हें ऐड करेंगे, 12 minus 4 is 16, 16 minus 3 is 19, 19 minus 21 is 20, we get minus 20, okay. Now similarly we check, put x is equals to 2, okay. Now when we put x is equals to 2, we never get the value of fx भी 0, okay, means f2 में भी हमें 0 नहीं मिलेगा। Similarly again we put x is equals to minus 2, इस केस में भी हमें 0 नहीं मिलेगा। Now we again put x is equals to 3, इस केस में भी हमें 0 नहीं मिलेगा। When we put x is equals to 3 means f3, we never get 0। Now we put x is equals to, now check it, x is equals to 3, f3, okay. When we put x is equals to 3, we get 3 cube minus 3 plus 4, 3 minus 12, okay. 3 cube, 3 3 is 9, 9 3 is 27,
माइनस 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 प्लस 12 माइनस 12 मीन्स यहाँ पे हमें 0 मिलेगा. ओके, वी गेट 0. We get 0. Okay, means F3 is equals to 0. Means that when the value of x is equals to 3, we get F3 is equals to 0. Then when we change the sign, जब आप 3 की साइन चेंज करेंगे आपको मिलेगा x minus 3. Then we can say that x minus 3 is the factor of polynomial fx. ओके, हम ये कह सकते हैं कि x माइनस 3 बहुपद fx का एक गुणनखंड होगा. क्यों? क्योंकि जब हमने x के प्लेस में 3 रखा है हमें रिमाइंडर कितना मिला, वैल्यू कितनी मिलती है, 0. ओके, नाउ स्टूडेंट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इज if x plus 1 by 2 is a factor of the polynomial, then find the value of p. Okay, the meaning of question is यदि x plus 1 polynomial का एक factor है, okay, means गुणनखंड है, then p की वैल्यू फाइंड करनी है. क्लियर? now firstly what will we do? The first is we let fx is equals to polynomial px square minus 4px plus 3. Okay, and it is given that ये हमें दिया गया है कि x plus 1 by 2 is a factor of fx. फैक्टर ऑफ fx मतलब कि ये आपको दिया गया है कि x plus 1 इसका क्या है, एक फैक्टर है. ओके, अगर आप इसे हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x plus 1 by 2 बहुपद fx का एक गुणनखंड है. ओके, डोंट राइट बोथ द स्टेप. ओके, दिस इज फॉर इंग्लिश मीडियम एंड दिस इज फॉर हिंदी मीडियम. और ओके, तो ऐसी कंडीशंस में आप क्या करेंगे, आपको जब ये पता है कि ये फैक्टर है, तो अभी मैंने बताया था कि अगर फैक्टर होगा तो ये जो वैल्यू है x plus 1 by 2 is equals to 0, means x is equals to minus 1 by 2. मीन्स ये जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 1 में अगर पुट की जाएगी तो हमें fx की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0. इसका मीन्स क्या होगा, देन f 1 by 2 is 0. ये तो होगा फैक्टर, मीन्स दिस. नाउ पुट देन f p minus 1 by 2 whole of square minus 4 into p minus 1 by 2 plus 3 is equals to 0. Clear? Now solve it. We get square of minus 1 by 2 is 1 upon 4 p. Okay? Minus, here we cancel out. Minus plus 2p plus 3 is equals to 0. Okay. Now here we take LCM 4, then p plus 8p and minus 3. Here 9p is equals to 4. It is minus 3. Then 3 3 is 9. We get p is equals to minus 4 by 3. The value of p is minus 4 by 3. Okay, this is the answer. Now students, that's all for today. Now we continue this chapter on my next class. ये सारे क्वेश्चंस आपकी बुक के थे, बुक की एक्सरसाइज 5.3 के हैं.
मैंने आज 3 टाइप के क्वेश्चन दिए, डिस्कस किए। फर्स्ट स्टेप इज फर्स्ट मेथड इज जब आपको सिंपल डिवीजन करना था। सेकेंड क्वेश्चन में आपको फैक्टर फाइंड आउट करना था। फैक्टर फाइंड आउट करने में आपको x की वैल्यू लेट करनी होती है। आप 1 by 1 चेक करोगे, x इज इक्वल टू 1 -1 2 -2 एंड सो ऑन आप करके चेक करोगे। जिस कंडीशन में आपको 0 मिल जाता है वो उसका फैक्टर होगा। ओके, एंड थर्ड क्वेश्चन में क्या था, आपको ये गिवन होगा कि ये इसका फैक्टर है। आपको एक वेरिएबल में एक अननोन टर्म होगा, उसको फाइंड करना होगा। और जब भी आपको ये गिवन हो कि ये फैक्टर है, ऐसी कंडीशन में वो वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे और हमें रिमाइंडर कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। नहीं, ये एक्चुअली गिवन है तो हम ये 0 लेकर के चलेंगे। ओके, यू ऑल नो दैट व्हेन वी फाइंड वन अननोन टर्म we have one equation. Okay, here we have one equation. Easily we can find the term p, x, k and so on, जो भी होगा। Okay, that's all for today. Thank you so much. Hello students, welcome to online classes of Suvarna Group of Institution. In my previous video, I had already started the third chapter of history named Forest Society and Colonialism. In my previous video, I had already explained you what are forest societies and what is colonialism. And I also explained what are deforestation, what is deforestation and what are the causes of deforestation. And now we will start from the categories. In my first topic, why deforestation, and the second topic, rise of commercial forestry. And now, I continue my second topic, rise of commercial forestry. जिसमें मैंने बताया कि किस तरीके से जब डिफॉरेस्टेशन स्टार्ट हुआ तो लोगों को, ब्रिटिशर्स को टेंशन होना स्टार्ट हुआ और उन्होंने एक जर्मन एक्सपर्ट को इसलिए बुलाया ताकि वो यहाँ पर आके कुछ रूल्स और रेगुलेशंस के साथ डिफॉरेस्टेशन को रोक सके। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने कुछ एक प्रॉपर सिस्टम बनाया, कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए जिनको ब्रेक करने के लिए उसने लोगों को पनिश करना स्टार्ट करने के लिए बोला। और उसने थर्ड एक और भी एडवाइस दिया, उसने वो एडवाइस दिया कि जो साइंस है कंजर्वेशन की, उसके लिए लोगों को ट्रेन करना स्टार्ट किया जाए ताकि लोग कंजर्वेशन को लेके थोड़ा सा सीरियस हो और फॉरेस्ट कंजर्वेशन के बारे में भी सोचे। इस तरीके से उसने क्या किया, जो फॉरेस्ट थे उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। द फर्स्ट आर द रिजर्व कैटेगरीज, द रिजर्व फॉरेस्ट, सेकंड इज द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड थर्ड इज विलेज फॉरेस्ट। इस तरीके से 3 कैटेगरीज डिवाइड करी। लेकिन क्या था, सभी के व्यूज बहुत डिफरेंट थे फॉरेस्ट को लेकर। जैसे कि जो विलेजर्स थे उनके लिए फॉरेस्ट का क्या यूज था, वो फॉरेस्ट को मानते थे फ्रूट्स, ट्यूबर्स, हर्ब्स, मेडिसिन और एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स के लिए ही फॉरेस्ट जरूरी होता है। उनके लिए फॉरेस्ट जो है सिर्फ इन कामों के लिए ही यूज होते हैं क्योंकि वो उनकी लिवलीहुड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट जो फॉरेस्टर्स थे वो सोचते थे कि जो भी यूज है फॉरेस्ट का वो शिप्स के लिए, हम शिप मेकिंग के लिए फॉरेस्ट से टिम्बर यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम रेलवे ट्रैक पे सेट करने के लिए स्लीपर्स के लिए हम यूज कर सकते हैं। एंड फॉर द हार्ड टिम्बर जैसे साल, टीक, ये सारी चीजें हैं वो एक हार्ड टिम्बर के रूप में यूज होती है जिन्हें वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो इंग्लैंड मिलना चाहते थे क्योंकि वहां पर रोड रेस जो है वो बहुत कम हो गए थे। तो फॉरेस्टर्स के लिए ये सारी चीजें जरूरी थी। एक फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस उनके लिए बस इतनी ही थी। इसी के साथ साथ जब जो डैट्रिक ब्रांडिस थी जो उसने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट चलाया, उस इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के अंदर उसने क्या क्या रूल्स और रेगुलेशंस बनाए वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी कि कौन कौन से रूल्स और रेगुलेशन थे जो उसने फॉरेस्ट के लिए स्टार्ट किए और उनका वहाँ की जो लेवल थी, वहाँ की जो ट्राइबल्स थी, वहाँ की जो सोसाइटीज थी उसके ऊपर उसका क्या इफेक्ट पड़ा। बहुत सारे इफेक्ट पड़े, कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव, यहाँ पे डिस्कस करते हैं। लेट्स डिस्कस। एंड नाउ द फर्स्ट, बैन ऑन द विलेजर्स फॉर, उसने सबसे पहले बैन कर दिया विलेजर्स के लिए फॉर फिशिंग, वुड कलेक्शन और फ्रूट्स, इन सब के लिए। मतलब उसने फिशिंग को बैन करा, वहाँ से जो लोग वुड को कलेक्ट करते थे उसको बैन किया, जो लोग वहाँ से फूड और सब चीज़ें ले जाते थे उन सब चीज़ों को उसने बैन कर दिया। इसके साथ साथ शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बैन कर दिया। शिफ्टिंग कल्टीवेशन जिसे हम स्लैश और बर्न जो है वो मेथड में बोलते हैं। और इसके साथ ही उसने हंटिंग को भी बैन किया। देखिए सारे रूल्स और रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट थे, हंटिंग को बैन किया। एंड नाउ सम कम्युनिटीज गेव अप। अब उसकी वजह से क्या हुआ, अब इफेक्ट क्या
अफेक्ट द कल्टीवेशन, इससे वहाँ की कल्टीवेशन पे, वहाँ की सोसाइटीज पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ। सबसे पहले क्या हुआ कि बहुत सारी कम्युनिटीज थी, उन्होंने अपने ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन को गिव अप कर दिया, क्योंकि उनका ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन कल्टीवेशन ही था, फार्मिंग था। वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन से ही, बर्न और स्लैश के मेथड से ही जो है वो कल्टीवेशन करते थे। जब उस पर बैन लग गया तो उनका जो एक ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन था वो खत्म हो गया। ये उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। और कुछ कम्युनिटीज, सब कम्युनिटीज गेट, बट इसके साथ साथ कुछ फायदे भी हुए। पॉजिटिव इफेक्ट में क्या आया कि जो कुछ कम्युनिटीज गेट न्यू वर्क अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारी कम्युनिटीज को नए काम करने की अपॉर्चुनिटीज भी मिली। इसके साथ साथ लोकल जो पीपल थे उनकी ग्रेजिंग पर भी वहाँ पर बैन लगा दिया गया था। अब इस तरीके से हम देख रहे हैं कि किस तरह से इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो पास हुआ उसमें कितने स्ट्रिक्ट रूल बनाए गए वहाँ के लोकल पीपल्स के लिए, वहाँ की ट्राइबल्स के लिए, वहाँ की सोसाइटीज के लिए, जो कि मोस्टली तो नेगेटिव बट कुछ पॉजिटिव इफेक्ट के साथ फिनिश हुआ। अब उससे प्रॉब्लम से स्टार्ट हुई। जब भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, मैं बहुत सारा हिस्ट्री में बार बार बता चुकी हूँ, रिबेल होता है। रिबेल का मतलब क्रांति, रिवॉल्ट, नाराजगी लोगों का, क्योंकि लोगों के ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन तक उससे इफेक्टेड हो रहे थे, तो जो है अगेंस्ट उनको होना पॉसिबल था। अब जब वो अगेंस्ट, तो हमारा थर्ड टॉपिक था रिबेलियन इन फॉरेस्ट। अब हम इसके बाद देखेंगे कि किस तरीके से फॉरेस्ट में रिबेल स्टार्ट हुआ, रिबेल स्टार्ट हुआ, उसके लिए बहुत सारे लीडर्स। अब ये सिर्फ जो रिबेल स्टार्ट हुआ वो फॉरेस्ट का, वो सिर्फ इंडिया में नहीं, नॉट इन इंडिया, इट वॉज स्टार्टेड इन होल ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में जगह जगह पर जहाँ जहाँ पर भी जो है वो कोलोनियलिज्म चल रहा था या किसी और वजह से, या फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट बनाने के लिए जो ये डिफॉरेस्टेशन चल रहा था, वहाँ के लोकल पीपल्स के साथ जो भी उनकी सब चीज़ों को बैन, शिफ्टिंग, हंटिंग, फिशिंग, इन सब पे जो बैन लग रहे थे, उसकी वजह से रिबेल स्टार्ट हो रहा है। अब देखिए क्या था स्टार्ट रिबेल। पहले आप देखिए जब कोई भी रिबेल स्टार्ट होता है तो उनमें बहुत सारे लीडर्स निकल कर सामने आते हैं। अब इंडिया में जब रिबेल हुआ तो छोटा नागपुर में जब रिबेल हुआ तो वहाँ पे बिरसा मुंडा एक ट्राइबल लीडर था, एक आदिवासी नेता था, जिसने कि वहाँ पर वहाँ के लोगों के लिए रिबेलियन स्टार्ट किया था और फिर वो सक्सेस भी हुआ था। इसी के साथ साथ आंध्र प्रदेश में सीताराम राजू का नाम है, वो बहुत फेमस लीडर थे, जिन्होंने इस रिबेल के लीडर बने वो, और उससे भी उन्होंने बहुत सारे चेंजेस लाए सोसाइटी में। एंड नाउ अब हम यहाँ पर जो मैं एग्जाम्पल लेकर चल रही हूँ वो हम बस्तर का एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं। बस्तर जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है, और छत्तीसगढ़ का एक छोटा सा जगह है बस्तर, जहाँ पर कौन कौन सी कम्युनिटीज रहती है, वहाँ पर मोरिया गोड, वहाँ की कम्युनिटीज के नाम में है मोरिया गोड, भद्रास एंड हलबास। ये वहाँ की कम्युनिटीज थी जो कि जो है फॉरेस्ट में रहती थी, वही उनका लिवलीहुड था, वही उनका ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन था, और वहीं से ही वो अपनी सारी नीड्स को, अपनी सारी जो है ज़रूरतों को फुलफिल करते थे। सो तो हमने देखा बस्तर के बारे में। एंड नाउ टुडे इज माय टॉपिक इज फिनिश नाउ। तो आज हमने कैटेगरीज पढ़ी, इसके साथ साथ हमने पढ़ा विलेजर्स का और फॉरेस्टर्स का अलग अलग डिफरेंट व्यूज पढ़े जो कि उन्होंने फॉरेस्ट के बारे में अपने रखे। इसके साथ ही हमने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के कुछ रूल्स और रेगुलेशन पढ़े, किस तरीके से वो पॉजिटिव और निगेटिव इफेक्ट डालते हैं वहाँ के लोगों के, वहाँ की सोसाइटी के ऊपर। और हमने फिर पढ़ा कि किस तरीके से बस्तर में एक रिबेल स्टार्ट हुआ। इसको मैं आगे भी कंटिन्यू करूँगी अपने नेक्स्ट टॉपिक में कि बस्तर में किस तरीके से क्या कॉजेज थे रिबेल के, और किस तरीके से उनके ऊपर जो इफेक्ट था वो पड़ रहा था। इट इज़ ये मैं इसको जो है अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। एंड लास्ट फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं क्लास 9th में विषय हिंदी कबीर दास द्वारा रचित साखी शीर्षक में आपको पढ़ा रही थी। पिछले वीडियो में मैंने 5 दोहे आपको पढ़ाए और अब मैं 6 से 10 तक दोहे पढ़ाऊंगी आपको। बच्चों को ध्यान से सुनना है आपको। देखिए, छठा दोहा है, भगति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार। प्रस्तुत पंक्तियों में इस
ईश्वर की महत्ता प्रदर्शित की गई। ये हमारा क्या हुआ? प्रश्न। अब व्याख्या में आइए। कबीरदास जी कहते हैं, भगत के भजन हरि नाम, जिस प्रकार सागर को पार करने के लिए नौका की आवश्यकता होती, उसी प्रकार इस संसार सागर से मुक्ति पाने के लिए भी हमें ईश्वर की आवश्यकता होती। जिस प्रकार से, इसलिए हमें मन से, वचन से, कर्म से ईश्वर का भजन करना चाहिए। ऐसे बच्चे देख ले, कबीरदास जी कहते हैं, भगत के भजन हरि नाम, जिस प्रकार से सागर को पार करने के लिए नौका की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से मनुष्य को इस संसार सागर से पार करने के लिए हमें ईश्वर की भक्ति परम आवश्यक होती है। इसलिए हमें मन से, मनसा, वाचा यानी वचन से, कर्मणा यानी कर्म से हमें ईश्वर का भजन करना चाहिए। हमें ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, तभी हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। अगले दोहे में आए, कबीर चित्त चमकिया 34 लागी लाई। कबीर चित्त चमकिया 34 लागी लाई, हरि सुमिरन हाथों गड़ा, बेगे लेव बुझाई। कबीरदास जी कहते हैं कि जब हमें ज्ञान का प्रकाश होता, हमारे अंदर जब ज्ञान का प्रकाश होता है, तब हमें सत्य का आभास होता है। और जब हमें सत्य का आभास होता है तो ऐसा लगता है जैसे चारों ओर दुखों की अग्नि लगी है, जैसे चारों ओर दुखों की आग 34 लागी लाई, जैसे चारों ओर दुखों की आग लगी। तो कबीरदास जी कहते हैं, हरि सुमिरन हाथों, हे मनुष्य, परमात्मा का स्मरण रूपी घड़ा, परमात्मा का स्मरण रूपी घड़ा तो तेरे हाथ में है। तू शीघ्र ही उस जलती हुई अग्नि को इससे क्यों नहीं बुझा लेता? परमात्मा का स्मरण रूपी घड़ा तो तुम्हारे हाथ में है। तुम इस अग्नि में क्यों जल रहे हो, क्यों झुलस रहे हो? इससे, इस घड़े से तुम उस आग को शांत कर सकते। कवि का भाव है, जब संसार में चारों ओर ईर्ष्या, द्वेष, इसकी आग लगी होती है, तो हमें परमात्मा का ही स्मरण करना चाहिए। विषय वासनाओं में लिप्त रहता है मनुष्य है, तो उनसे दूर रहने के लिए हमें परमात्मा का ही स्मरण करना चाहिए। आठवें में अनसरिया जाई पड़े पंथ निहार निहार, जीवड़िया छाला पड़िया राम पुकार। प्रस्तुत दोहे में कबीर की आत्मा परमात्मा से मिलन के लिए व्याकुल हो गई। ये क्या हो गया बच्चों? प्रसन्न। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीर की आत्मा परमात्मा से मिलन के लिए व्याकुल। कबीरदास जी कहते हैं, अनसरिया जाई पंथ निहार निहार, यानी परमात्मा का रास्ता देखते देखते, परमात्मा का रास्ता देखते देखते हमारी आंखों के नीचे झाइयां पड़ गई। काले धब्बे, उनको झाइयां कहते हैं। परमात्मा का रास्ता देखते देखते हमारी आंखों के नीचे झाइयां, जीवड़िया छाला पड़ी, और मुख से राम का नाम पुकारते पुकारते हमारी जीभ में छाले पड़ गए। कवि का तात्पर्य है कि कबीर की आत्मा जो है परमात्मा से मिलन के लिए बेचैन हो रही, दुखी हो रही है। ऐसे देखिए, अनसरिया जाई पड़े पंथ निहार निहार। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर की जो जीवात्मा है परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल है, और परमात्मा का रास्ता देखते देखते हमारी आंखों के नीचे झाइयां, अर्थात
कह रहे हैं कि झूठे सुख इस संसार में जो कुछ भी वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं वे सब नश्वर है, नाशवान है। और हम इसी झूठे सुख के फेर में पड़े रहते हैं। मानत है मनभूत। जिस प्रकार से यदि कोई छोटा बच्चा है, यदि उसकी गोद में हम कुछ चवेना अर्थात चने डाल देते हैं तो जगत चवेना कारक धीरे धीरे वो बच्चा क्या करता है, उन चनों को एक एक करके बारी बारी से पूरे खाता। उसी प्रकार से ये संसार भी जगत ये संसार भी चवेने के समान है। धीरे धीरे ये सब कुछ नष्ट कर देता है। इसलिए संसार की नश्वर वस्तुओं पर हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। और क्योंकि ये संसार नष्ट होने वाला है, नाशवान है। जिस तरह से कोई बच्चा जिसको कुछ खाने के लिए चने दिए जाते हैं तो धीरे धीरे वो उनको एक एक करके खा लेता है। 10वां देखिए, जब मैं था तब हारी नहीं, अब हारी नहीं, सब अंधियारा निकले जब दीपक देखा। कबीरदास जी कहते हैं, जब मेरे अंदर अहंकार था तब मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकी। अब हरि है मैं नहीं, अब हरि है अर्थात अब मेरे अंदर का अहंकार समाप्त हो गया है तो मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो गई। सब अंधियारा मिट गया और जब परमात्मा की प्राप्ति हो गई तो हमारे अंदर का सारा ज्ञान समाप्त हो गया और हमने दीपक जलाकर देखा तो चारों ओर प्रकाश से प्रकाश था, अर्थात अज्ञानता का अंधकार समाप्त हो गया था और उसके स्थान पर ज्ञान का प्रकाश फैल गया। जैसे कहते बच्चों, जब मैं था तब हरि नहीं। कबीरदास जी कहते हैं, जब मेरे अंदर अहंकार था, घमंड था, तब मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकी। अब हरि है मैं नहीं, अब परमात्मा आ गए हैं और मेरे अंदर का सारा अज्ञान, सारी अज्ञानता, सारा अहंकार समाप्त हो गया है। और जब अज्ञानता समाप्त हो जाती है, ज्ञान का प्रकाश हो जाता है तो मैंने दीपक सब अंधियारे में मेरे अंदर का सारा ज्ञान समाप्त हो गया और जब मैंने दीपक जलाकर देखा तो चारों ओर प्रकाश प्रकाश फैला था। बच्चों, ये 6 से 10 तक के दोहे हैं। अब मैंने जो आपको व्याख्या करने का तरीका बताया था, पहले नंबर पर संकेत डालेंगे, फिर इसके बाद संदर्भ लिखेंगे, संदर्भ के बाद प्रसंग लिखेंगे, प्रसंग के बाद व्याख्या और व्याख्या के बाद